हेलो दोस्तों, आज का दिन सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मैं आज बिहार का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस पे आया हूँ, महाबोधि टेम्पल। Yeah, I'm a Buddhist. तो अंदर कैसा है? अंदर इट्स अ वेरी surreal एक्सपीरियंस. अंदर जाके लोग ज़्यादातर they do prostrations or make offerings to the Buddha. And there's a lot of chanting going on. Chanting बहुत चलती है, तो it's a very मन को बहाती है. My name is Sangel Kalden. I'm from Nepal, ओके। Nepal, Kathmandu. Today's my first day visiting the temple. This is my first time in India. It's been quite the experience. I'd recommend other people, like tourists, foreigners, to visit. I'd say it's a once in a lifetime. You have to come here. I'd recommend it. एक बार भगवान बुद्ध अंगुली माल से मिले. अंगुली माल 999 फिंगर को काट चुके थे. उस गांव में लोग क्रॉस होने से डरते थे. अंगुली माल रहते, वो डाकू थे. उसमें एक को काटना था, 1000 का माला बनाया था. भगवान बुद्ध बोले मैं अंगुली माल से खुद स्वयं मिलूंगा. तो उन्होंने अंगुली माल से मिलने के लिए गए. भगवान बुद्ध उस जंगल में गए. तो जगह में जब भगवान बुद्ध क्रॉस कर रहे थे तो अंगुली माल बोले रुक जाओ. तो भगवान बुद्ध बोले मैंने तो रुक गया, तुम कब ठहरोगे. ये सुन के अंगुली माल को थोड़ा सा अच्छा लगा. बोला मेरे को आपका अंगुली काटना है. बोला मेरे को अंगुली काटना है, काट लो. मैं आपको अंगुली देता हूँ, काट लो, कोई दिक्कत नहीं. मैं अंगुली दूंगा, आप मेरे को अंगुली काट लेना, माला बना लेना. लेकिन मैं एक आपको छोटा सा काम देता हूँ. बोला क्या काम दीजिएगा. बोला मैं देता हूँ, एक पेड़ के जाओ और टहनी काटो. तो बोले ईजी है. उन्होंने तलवार से जाकर टहनी काट लिया. भगवान बुद्ध बोले जाकर पेड़ के लगा दो. बोले ये कैसे हो सकता है. तो भगवान बुद्ध बोले जब किसी को आप जीव नहीं दे सकते हैं, किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, तो हत्या करने का अधिकार आपका नहीं है. My name is सुमलता. मैं सीपीटी के हूँ. सीपीटी के लाहौर सीपीटी हिमाचल से टेम्पल से दर्शन करके फिर दिल को बहुत सुकून मिला. आप क्या बेच रहे हैं सर? टेम्पल फोटो बेच रहे हैं. दोस्तों, आप बोध गया से सुवेनियर ले जाने के लिए आपको बहुत पैसा का ज़रूरत नहीं है. आप 20 रुपये में इतना अच्छा सुवेनियर ले जा सकते हो याद के लिए कि बोध गया आया था तो इतना अच्छा फ़ोटो लेकर गया था. यादगार के लिए ले जा सकते हैं. और कैसा है? सब एक जैसा है? अलग अलग दिखाइए. मॉडल ओह, पत्ते हैं. 20 का है, ज़्यादा नहीं. My name is Mia. I'm from the US. Yes, well, we arrived a few days ago, and we've been traveling throughout India on a devotional tour of all religions. Yes, it's a spiritual tour. like Buddhism, Hinduism, every religion. What motivated you to visit all devotional tourist place? Well, it's the same God, no? It's the same essence. Okay. And to experience it in different ways, you get different perspectives, and you can experience it in a deeper way. So coming here is our only Buddhist site, but it's incredible. It's so beautiful, and the devotion is very, very strong. Does it feel like UNESCO World Heritage Site, this one? Yes, for sure. Sir, please tell something about your style sense because it's really different to see. So I don't know, I don't think much about. I just express whatever comes. I like colors, I like different cultures. This is Bindi from India, and this is from France, and this is from Sufi culture in Turkey, and I'm in a Buddhist culture now. So I like to, this is from I think Mexico. I like to fusion different cultures, different styles, and different expressions. Okay. Are you only a devotional tourist or you like nightlife and parties also? I used to be now, but I'm not into nightlife or parties anymore. I come to India for meditation, for silence, for peace, and for devotion, to witness this devotion, to connect with people and learn language and culture. Yeah. Do you know yoga? Yes, I do yoga. Every position? Not every position. There is 84 asanas. I don't in Hatha Yoga, but I don't do all 84 asanas. I do 12, 14, 15, whatever is necessary for me in that day. And where you have learned the yoga from? I learned in India, and then there was a school called Hridaya in Mexico. I also more got deep in there in my practice. Okay. And please tell something good about this place Bodh Gaya and one thing good about this place Mahabodhi Temple. Okay.
Okay. Bodh Gaya is a good also is a kind of mix of culture. I see there is masjid here back, and there is this Buddhist temple. There is Shri Jagannath temple there. So it is one place, many cultures. But the Bodh Gaya, the Bodhi tree, of course, where the Lord Buddha was enlightened. So there's so much enlightenment energy, and that feels inspiring. Yeah. Okay. Being a party animal, please tell about the transition which you felt after turning into a devotional man after a party animal. Because I understand the party goes inside, not outside. If I continue dancing and moving that energy in myself, that is more sustainable. And to all the party animal outside there, what was your genre of party? What kind of music you liked back then? I like Sai, I like techno, I like both, most music. I like also jazz, you know, whatever makes you move and then dance until you are done, until you're tired, then meditate. Whoever watching this is a cool guy, Om Prakash. Because here is a famous place for Buddhists. Because I'm Buddhist, so I have to come here. I think it is not underdeveloped because it's a local way. Local is like a local people, local life is like this. So it's very good. When I come here, I would like to stay with the local. I don't want to stay with the developed. But it have to clean more than this. मुझे ज्ञान बहादुर लामा जी मिले हैं जो बोध गया है। आप कितने दिन से बोध गया में हैं? आज 3 दिन हो गया। क्या क्या घूमे 3 दिन में? 3 दिन में आपका राजगीर घूम लिया, यहाँ घूम लिया, यहाँ से बनारस निकल जाना है। आप बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट हैं। तो कैसा लगा बोध गया? प्लीज। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहली बार आए? नहीं बहुत बार आता है, साल में एक बार आता है। तो जब कोई लोग बार बार आता है तो उतना अच्छा नहीं लगता? नहीं बहुत अच्छा है। बार बार आने पे भी अच्छा? बहुत अच्छा है। यहाँ तो रात में 2 बजे 3 बजे 45-16 कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा है। सेफ है? सेफ है, अच्छा है। महाबोधि टेम्पल के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? प्लीज। सब अच्छा है अंदर का, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बुद्धिस्ट प्लेस है ना अंदर, बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध इस जगह पे डायरेक्ट नहीं आए थे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाएगा तो एक गुफा है जहाँ पे भगवान बुद्ध तपस्या किए थे 6 साल 27 दिन बिना खाए हुए, लेकिन उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो नदी पार जाएगा तो एक सुजाता मंदिर है जहाँ पे एक लड़की ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था और माध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। गिटार को तार को इतना कस के मत को ताकि आवाज़ नहीं आए, इतना ढीला, माध्यम मार्ग में जाइए। उन्होंने माध्यम मार्ग का उद्देश्य अपनाया, उनको से खीर खाया। ये बोधि ट्री के पास आए, 1 सप्ताह वर्जासना में बैठे, लेकिन भूमि स्पष्ट मुद्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने धरती माँ से वादा किया, जब तक जगह को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे को ज्ञान ना प्राप्त हो। जब भगवान बुद्ध इस जगह पर आए थे तो ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, जंगल था। उस प्राचीन जंगल का नाम था और वीला जंगल। आज से करीब 2600 साल पहले सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध इसी जगह कलाए। ये जो बड़ा वाला मंदिर देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं महाबोधि मंदिर। महा मतलब महान होता है और बोधि मतलब ज्ञान होता है। सम्राट अशोक ने 30 फीट चौखंडी स्तूप बनाया था। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर फीट स्तूपा। 1 पिलर्स, 2 पिलर्स, 3 पिलर्स, 4 पिलर्स। इसमें 4 पिलर है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। 150 फीट जो मंदिर का स्ट्रक्चर है जो समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया। 289 केजी के ऊपर में सोना है जो थाईलैंड का राजा रानी आके दान दिया 2013 में 20 नवंबर को। मंदिर को मीटर से नापिएगा तो 52 मीटर है, फीट से नापिएगा तो 180 फीट है। मंदिर पूरा तरह से बन के तैयार हो गया था सर। तो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन बिकियार खिलजी। खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को 6 महीने लगातार जलाया, जिंदा आदमी को जलाया और बुद्धिस्ट किताब जलाया। इस जगह पे आ गया, ऊपर से 30 फीट को तोड़ दिया और मंदिर को मिट्टी से ढक दिया। 12 से 18 6 साल तक ये मंदिर मिट्टी में ढका रहा। चारों तरफ से ये मंदिर मिट्टी में ढका रहा। 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आए, अलेक्जेंड्रा लॉर्ड किंगडम, तो मंदिर के खुदाई किए और 30 फीट बना के 19वीं सेंचुरी में पूरा तरह से कंप्लीट कर दिए। नीचे वाला पार्ट जो सम्राट अशोक बनाए जो चौखंडी स्तूप है वो 3rd सेंचुरी BC का है। ऊपर वाला पार्ट जो समुद्रगुप्त बनाए वो गुप्ता पीरियड का है, 4 to 5 AD का है। 1600 वर्ष पुराना है। अगर मीटर से नापिएगा तो 52 मीटर है, फीट से नापिएगा तो 180 फीट है। ऐसे तो सम्राट अशोक अपना जवानी में 84,000 स्तूपा बनाए,
लेकिन इस जगह पे 484 स्तूपा है। उस समय के ज़माना में जब लोग मरते थे तो उनका नाखून और बाल काट के स्तूप बनाते, तो सम्राट अशोक के समय में स्तूपों का पूजा होता था, बोधि ट्री का और भगवान बुद्ध का चरण का। मूर्ति पूजा नहीं होता था। जब वेस्ट बंगाल का राजा पाल वंश का राजा इसके अंदर में 8 फीट का स्टैचू दान में दिया, ब्लैक का स्टैचू दान में दिया, तो यहाँ पे गोल्डन कलर कर दिया। सामने में देखिए तो भगवान बुद्ध का बिंदिया हीरा है, 2 साइड में सोना है और चांदी का पात्र है। महायाना हीनयाना बुद्धिज्म डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2 तरह का डिश है, एक दिन रेड एक दिन येलो चेंज होता है। और 10 बजे मंदिर द्वारा भगवान बुद्ध को खीर का बल होता है। महायाना जो मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयाना जो फिलोसफी का पूजा करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इस कॉम्प्लेक्स में 49 डेज 7 सप्ताह बिताए थे। Everything is beautiful here, in their presence, in their form. Even the people who are bargaining, asking for money and things, they are all beautiful. The things they sell here is beautiful. The architecture is beautiful. The mood. And some general question I would like to ask one thing. I find foreigners, every foreigner has a unique style sense. 2 foreigners doesn't dress in the same way. Everybody is dressed differently and just present themselves differently. So what's your style statement, sir? Because you are wearing some water wash denim. What is my presentation? I mean, I receiving clothes as a present. I like to mix things with like normal people would not mix. Just a Question, yeah. It's not really a statement. I'm trying to have fun with my clothes, and I like to mix funky stuff. हाँ, तालाब के बारे में। सर जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इस एक तालाब है, इस जगह का नाम है मुच्चुलिंदा टेम्पल। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो जोर से आंधी तूफान आया, उनका मेडिटेशन भंग ना हो जाए, तो सांपों का राजा नाग राजा इस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिए, 7 रात 7 दिन अम्ब्रेला की तरह। अतः उनका मेडिटेशन सफल हो गया। ये रियल जगह नहीं सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएगा तो एक मोचारिम गाँव है, वो रियल जगह। ये आर्टिफिशियल बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 140 साल पहले। 10 फीट गहरा है और इसमें 2-2 किलो 5-5 किलो मांगुर का मछली है। ये बर्मा का राजा ने स्टैचू दान दिया, 1000 वर्ष पुराना है। इधर में तिब्बतियन फ्लैग है, मंत्रा लिखा हुआ है, ओम मानी पाद्मे होम, ओम मानी पाद्मे होम, ओम मानी पाद्मे होम। ये मंत्र आसपास लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आता है और नेगेटिव एनर्जी आता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है कि हम लोग गया के। What's your good name, ma'am? खुशी। खुशी, generally I find कि girls from Gaya are not that open-minded to talk to boys around here. So I feel कि you are little open-minded. Because we are Gen Z. Because we are now kids. So we talk more frequently. Okay, and your sir has arrived here. Yes. तो हम अगर गया की बात करें तो काफ़ी कुछ है। भगवान विष्णु की नगरी है, भगवान बुद्ध की नगरी है। अगर मिठाइयों की बात करें तो यहाँ सबसे फेमस तिलकुट है। आपने ट्राई किया है कभी? तिलकुट जो कि गया से ही जिसकी शुरुआत हुई है और आज यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है तिलकुट। Well, I can speak for myself. My only motive was to visit this place because I've heard that Buddha reached enlightenment exactly in this place, and due to my really big interest in Buddhism and I do practice myself, I came here and my first impression was that I do feel that it happened here because the joy and the calmness is spread all over this city. And especially near the Mahabodhi temple. एक तिब्बतियन स्ट्रीट फूड खा रहा हूँ लापी बोध गया में, तो जस्ट टेस्ट इट कैसा लग रहा है। मिर्ची नहीं चाहिए। धरती माँ से वादा किया, जब तक जगह को मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे को ज्ञान ना प्राप्त हो। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो जोर से आंधी तूफान आया, जंगली जानवर उनको तंग किया, मारा नाम का राक्षस उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध कंटिन्यू मेडिटेशन करते रहे। उनको सिर्फ ना तो मारा के एक सुंदर बेटी थी, वो चारों तरफ से भगवान बुद्ध को नाचे ताकि मेरे साथ गलत करे, लेकिन भगवान बुद्ध कंटिन्यू मेडिटेशन करते रहे और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध इसी जगह कहलाए। जगह वही है, पेड़ चौथा पीढ़ी है। देखिए सर, सम्राट अशोक ने
एक युद्ध करवाया था, कलिंगा युद्ध। आप लोग को पता होगा जो उड़ीसा में हुआ था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे, खून का दरिया बह गया था। तो समर्थ अशोक जीत के बिहार गए, बोले शांति का धर्म कौन सा है, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को अपनाया। इस जगह पे आ गए, उन्होंने बेटा बेटी को भी नहीं छोड़ा, संघमित्रा और महेंद्रा को बहुत बिच्छू बना के जहाँ पे भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, एक रूट कट ने कहाँ लगा दिए, श्रीलंका में, अनुराधापुरम में। किस लिए? श्रीलंका 99% बुद्धिस्ट कंट्री है और समर्थ अशोक को बुद्ध को प्रचार करना था। पहला पेड़ उनका पत्नी को आया, तेज ऋषि का। वो नहीं चाहता था कि मेरा पति बौद्ध भिक्षु बने, पहला पेड़ कटवा दिया। दूसरा रूट वहीं से आया तो वेस्ट बंगाल का राजा शशांक इस जगह पे आया। वो हिंदू को मानता था, वो बुद्धिस्ट को नहीं मानता। वो काटा तो काटा, इसमें चूना भी डाला, आग भी डाला, लेकिन कहावत है भैया, जाको राको साइया मार सके न कोई। तीसरा रूट वहीं से आ गया। तीसरा रूट आंधी तूफान से नष्ट हो गया, बाई नेचर, प्रकृति से खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो गया। तो चौथा पेड़ उस रूट से नहीं आया। तो 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आए, अलेक्जेंड्रा लॉर्ड किंगडम, तो उनको मालूम चला यहाँ पे भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। वो पेड़ कहाँ गया? तो उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में किताब पढ़ा, समर्थ अशोक के बारे में किताब पढ़ा, तब उनको मालूम चला जो पहला पेड़ जहाँ पे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कलाए थे, बुद्ध को प्रचार करने के लिए एक रूट का टहनी संघमित्रा और महेंद्रा कहाँ लगाए थे? श्रीलंका में। अभी भी 2300 साल पुराना पेड़ वहाँ पे जीवित है। वहाँ से उन्होंने 2 रूट लेकर आया, एक यहाँ लगाया, एक सारनाथ में। उसी का वंश चला रहा, 140 साल पुराना है। जंगल में जन्म हुआ, जंगल में मृत्यु हुआ और जंगल में ज्ञान प्राप्त हुआ, और तीनों चीज़ वैशाख पूर्णिमा हुआ। उनके जीवन में 2 गाछ, पीपल का पेड़ जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, बनियान ट्री बरगद का पेड़ नदी पार जहाँ पर उन्होंने खीर खाया। मेडिटेशन पार्क सर जी, इस देश विदेश के लोग इस जगह पे आते हैं। इसके अंदर में मेडिटेशन पार्क है, लोग बैठते हैं, 20 रुपीज़ टिकट लगता है, लोग अंदर में जाते हैं और बैठते हैं और साधना करते हैं। ये सुबह मंदिर 5 बजे खुलती है और 9 बजे बंद होती है। मेडिटेशन पार्क में एक बेल भी है जो सुबह सुबह बजती है, 6 बजे कस की आवाज़ आती है, लोग बेल को देखने जो बर्मा का राजा ने दान दिया है। जी हमें बताएंगे कि इन बुद्धिज़्म हम ध्यान कैसे करते हैं? बस ऐसे है, ओके, ऐसे ऐसे करते हैं। और मंत्र क्या बोलते हैं? मंत्र आप जो आपने भाई वही बोलना है आपका। आप बोलिए। नहीं ठीक है, आप अंदर से बोलेगा तो वही ठीक है। नहीं आप बोलो ना, आप क्या बोलते हो? नहीं मेरे ठीक है इट्स ओके। और कितने देर का ध्यान होता है? इसका तो फिक्स नहीं है आपका, फिक्स टाइम नहीं है। बहुत लंबे भी बैठ सकता है, अब टाइम नहीं है तो छोटा भी बैठ सकता है। ओके, इसलिए आपको तो एज ए बुद्धिस्ट जब आप अंदर जाते हैं मंदिर में तो क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करते हैं अंदर? प्रोसेस में तो आपको ऐसा है, जो बुद्धिस्ट लोग का आज लोग मरता है ना, उसका नाव से आपका थोड़ा उसमें फल फूल चढ़ाना है, उसमें आप इसी से उसमें बत्ती जलाना है ना, पानी चढ़ाना है, और उसमें आपका बाहर आकर 2000 पैसे दान देना है। आप इससे से कितना होता है आपका दान? अच्छा, ये सब हम लोग गया में करते हैं, पिंडदान। पिंडदान, हाँ। और सेम आपका बुद्धिज़्म वही है, महाबोधि टेम्पल में आके। हाँ। और क्या क्या प्रोसेस होता है? अब ये पूजा होता है आपका, वो पूजा में आपका हम सुंदला, अब क्या फल फूल लिख जाता है ना, और बिस्किट लिख जाता है, उससे चढ़ाई देता है। बुद्धिस्ट लोग का आना है यहाँ तक, यहाँ दर्शन आना है। जो अपना माता पिता डेट हो गया, कोई भी डेट हो गया, उसका लिए उसका ये बत्ती जलाना है, दान कुछ देना है, इसीलिए आता है। तो रहने का बहुत पसंद है। आपको दिल से जाने की इच्छा है या फिर नहीं है? नहीं, दिल से जाने की इच्छा 2000 दिन और रखना मन करता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना। ओके, चलता हूँ। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर बोध गया कि महाबोधि टेम्पल के लिए। गुड टू हियर, थैंक यू। बहुत अच्छा है आपको। My name is Charles. Charles, and where are you from, Charles? I'm from the United States, the state of Utah. Okay, and are you in group? Yes. How many people? We have a group of 40 students here. We're all studying world religions. Okay. So we're studying Hindu, Sikh, Buddhism, Muslim, all of it. Does it help after coming here in your studies? Yes, we learned a lot about the Buddhist faith, and we learned a lot about Buddha and his enlightenment here at the tree. It was very cool. Okay, and is it your first time in India? Yes, first time in India. How many days passed in India? We've been in India for about 10 days now. So
Please, you must have visited all the states, I guess. Yeah, we went to Amritsar, New Delhi, Agra, Jaipur, and now. What is the best thing about Bihar? Please tell. About Bihar here? Yeah, Bihar, the state of Bihar, as compared to other states. Right. I like the natural beauty. There's a lot more jungles here. ये एक प्रेयर वेल है, माना जाता है गंगा जी में हम लोग स्नान करते हैं हिंदू धर्म में, तो पवित्र उस तरह मणिकुर्मा है, प्रेयर वेल है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो इस तरह घुमाते हैं, बोलते हैं ओम मणि पाद्मे होम, ओम मणि पाद्मे होम, ओम मणि पाद्मे होम। ये बोलने से मन को शांति मिलता है। एक सप्ताह में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि ट्री के नीचे, पहला सप्ताह में। दूसरा सप्ताह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इस जगह पे दूसरा सप्ताह बिताए थे। इधर एक स्तूपा है, इसको बोलते हैं अनिमेच लोचन। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो भगवान बुद्ध बोले, मैंने गुफा में गया, मेरे को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैंने सुजाता में गया, मेरे को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये पेड़ में क्या खास है जो ज्ञान प्राप्त हुआ? इस महान पेड़ को मैं क्या दे सकता हूँ? थैंक यू, ग्रेटफुल, धन्यवाद। इस तरह से बिना पलक झुकाए हुए 7 रात 7 दिन बोधि ट्री को देखते रहे। इसको बोलते हैं अनिमेच लोचन, बिना पलक झुकाए हुए। सर जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इधर में तीसरा सप्ताह बिताते थे। चक्रमन एक पाली लैंग्वेज है। भगवान बुद्ध 11 डेग जाते थे, वॉकिंग मेडिटेशन करते थे और पीछे आते थे तो मिट्टी हट जाती, उनके चरण से कमल का फूल निकलता। कमल का फूल तो नहीं सका, लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा ये पत्थर का बना दिया। 1205 में मोहम्मद बिन बिख्तियार खिलजी इसको भी खंडित किया था। इसी का कॉपी करके ब्रिटिश गवर्नमेंट 140 साल पहले ऊपर में 19 स्टेप बनाए। अभी का मानव का डेग देखिए, और सम्राट अशोक ने इमेजिन किया कितना बड़ा डेग चाहिए भगवान बुद्ध का, उन्होंने इमेजिन करके बनाया एक डेग। सर जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इधर में चौथा सप्ताह बिताए। इस जगह का नाम है रतनगढ़। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो सूरज की रोशनी पड़ने से उनके शरीर से 5 कदम, बुद्धिस्ट में बोलते हैं पंसिल। ओके सर, हमने पूरा घूम लिया, लेकिन लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ कि बुद्ध भगवान को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए सर, भगवान बुद्ध अपने जीवन में 4 चीज़ देखे थे। 4 थिंग। वो हमेशा सोचते थे मानव दुखी क्यों रहता है, वो हमेशा सोचते मानव दुखी क्यों रहता है। उन्होंने पहला जीवन में एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो बोला मेरा भी शरीर है, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा। उन्होंने एक दिन देखा कुछ लोग को जो बीमारी से घसित हुआ, बोला मैं भी बीमार से घसित हूँ। एक दिन उन्होंने मरा हुआ व्यक्ति को देखा तो बोला मैं भी मर जाऊँगा। सच क्या है? तो उन्होंने साधु को देखा, मॉन्क को देखा तो बोला मेरे को भी साधु बनना। इसीलिए अपना वो पत्नी को त्यागा, यशोधरा, माता महामाया, पिता शत्रुघ्न, बेटा राहुला, सबको त्याग दिए। अतः सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध इसी जगह कलाएं। भगवान बुद्ध को ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? लव, कंपैशन, बोधिसत्वा, घृणा नहीं करना। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधिसत्वा क्या है? बुद्धिस्ट में जो होता है बोधिसत्वा मानते हैं, लव, कंपैशन, करुणा करना, बुद्ध को मानना, बुद्ध का फिलॉसफी पर चलना। और लोग बोलते हैं कि मध्यम मार्ग, वो क्या है? उनको तो मध्यम मार्ग ज्ञान में मिडिल वे में उन्होंने अपनाए ना, मध्यम मार्ग। ये सुजाता से उन्होंने खीर खाया था ना सर, क्योंकि भगवान बुद्ध तपस्या किए थे 6 साल 27 दिन, वो कंकाल बुद्धा बन गए थे। लेकिन सुजाता एक लड़की थी तो बोले गिटार को तार को इतना कसके मत्ती को ताकि आवाज़ नहीं आए, इतना ढीला, मध्यम मार्ग में जाइए। तो उन्होंने मध्यम मार्ग का उद्देश्य अपनाया, उनको से खीर खाया, उनको से पावर मिला, एनर्जी मिला और बोधि ट्री के पास आए, ज्ञान प्राप्त हुआ उनका। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इस जगह पे चौथा सप्ताह बिताए। इस जगह का नाम है रतनगढ़। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो सूरज की रोशनी पड़ने से उनके शरीर से 5 कदम, बुद्धिस्ट में बोलते हैं पंसिल। क्या बोलते हैं? पंसिल। तो भगवान बुद्ध बोले इस जगह पे जीव हत्या मत करो, चोरी मत करो, लड़ाई मत करो, व्यभिचारी मत करो और किसी तरह का नशा पदार्थ का यूज मत करो। अगर ये सब मनुष्य अपनी ज़िंदगी में नहीं करता है तो उनका जीवन सुखमय और मंगलमय कहलाएगा। हम लोग हिंदू धर्म में कैसे गंगा जी में नहाते हैं तो बोलते हैं पवित्र, उस तरह मणिकुर्मा है। जब हम लोग बाहर में जाएंगे तो इस तरह घुमाएंगे, ओम मणि पे में होम, ओम मणि पे में होम, ओम मणि पे में होम बोलेंगे, मन को शांति मिलेगा। सर जी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इस कॉम्प्लेक्स में 5वां सप्ताह है। उस जगह का नाम है अचपाल निरोध ब्रिज। पहले यहाँ पे बरगद का पेड़ हुआ था, लेकिन आंधी तूफान से नष्ट हो गया तो सम्राट अशोक ने उसकी यादगार में एक गेट के पास एक अशोक का रेलिंग बनाया और 2300 साल पुराना है। ब्राह्मण एक ऊंचा जाति होता है, बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ और कोई ब्राह्मण बन नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध बोले कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं
कर्म से महान होता है, कर्मी महान है। देखिए सर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इधर में 6ठा सप्ताह बिताए थे। इस जगह का नाम है मुच्चुलिंदा टेम्पल। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो जोर से आंधी तूफान आया, उनका मेडिटेशन भंग न हो जाए तो सांपों का राजा, नाग राजा, इस तरह से उनको प्रोटेक्शन दिए, 7 रात 7 दिन अम्ब्रेला की तरह। अतः उनका मेडिटेशन सफल हो गया। ये रियल जगह नहीं सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएगा तो एक मोचारिम गांव है, ये रियल जगह। ये आर्टिफिशियल बनाया गया ब्रिटिश गोंदरा 140 साल पहले, 10 फीट गहरा है और इसमें 2-2 किलो 5-5 किलो मांगुर का मछली है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध इधर में 7वां सप्ताह बिताया। इस जगह का नाम है राजा यतना। राजा यतना एक जंगली पेड़ होता था, वो लाया गया है बर्मा से। जब भगवान बुद्ध साधना में बैठे हुए थे तो 2 बिजनेसमैन आए बर्मा से, उनका नाम था तपस्वी और भालू। भगवान बुद्ध को देख के आंख से आंसू आ गया। उनको खाने के लिए राइस, हनी, चपाती दिए। भगवान बुद्ध को खा लिए, देने के बदले में कुछ नहीं था। तो उस समय उन्होंने माथा का 2 बाल और नाखून का 2 बाल काटे और बिजनेसमैन को दिए। वो बर्मा में लगे और पगोडा बना दिया। अभी म्यांमार में जाएगा तो उनका नाखून और बाल का स्तूप बना हुआ, दांत उनका श्रीलंका में रखा हुआ। इस जगह भगवान बुद्ध 2 मंत्रा बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्धि का चरण लेता हूँ, मैं बुद्ध का चरण लेता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं बुद्धि धर्म का चरण लेता हूँ। संगम शरणम गच्छामि इस जगह नहीं बोलते क्योंकि उनका संग नहीं मिलता कि सुजाता से उन्होंने खीर खा लेता। उन्होंने शिष्य से वादा किया था बिना खाम कर उन्होंने खीर खा लिया, सब शिष्य वापस सारनाथ चले गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भगवान बुद्ध सारनाथ में गए उस जगह बोले संगम शरणम गच्छामि। इसका मतलब है मैं अच्छे संग, अच्छे लोग के साथ रहता हूँ। सीमेंट का बना हुआ 140 साल पुराना है। आसाम में लिखा हुआ, बर्मा में लिखा हुआ है, थाई में लिखा हुआ है, भाषा में लिखा हुआ है, तो बर्मा नहीं जानता हूँ। धन्यवाद। बाकी लोग खुद से आइए और यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का वाइब को फील कीजिए। हाय, मेरा नाम सुधीर यादव, बोध गया से। वेलकम टू बोध गया। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के टूरिस्ट प्लेस पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहने के लिए।